السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا 89 HD نیوز کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری نشریات میں آپ ہمارے مختلف پروگراموں کو پسندیدگی کی سند عطا کر کے آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں ناظرین، جس کے لیے آپ کا بڑا بڑا شکریہ۔ آج کی جو نشست ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص منظر نامے سے آج ہم نے اپنے مہمان کو دعوت دی۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں چودھری صدیق جٹ، جو کہ انٹرنیشنل جٹ کونسل کے مرکزی صدر ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کو جو ہم نے دعوت دی اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ آج کے قومی منظرنامے میں پاکستان میں اخوت و بھائی چارے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتشارانہ جو ہمارے رویے ہیں ان کی نظر ہوئیں، وہ ہم برادری کی سطح پہ دیکھ لیں، صوبوں کی سطح پہ دیکھ لیں، زبان اور لباس کی سطح پہ دیکھ لیں، تو ہمارے بہت سارے جو طبقات ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی پہ ہمیں اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے صدیق جٹ صاحب سے یہ جاننا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ کیسے وقت میں جب پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں سوسائٹی میں، برادری کی تقسیم کے نام پہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، مسلک و مذہب کے مسائل ہیں، اور جماعتی جو ہماری تقسیم ہے وہ بھی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں یہ جٹ انٹرنیشنل کونسل انہوں نے بنائی اور اس کے صدر ہیں۔ تو کیا یہ ان کی جو کوشش ہے یا ان کی جو جدوجہد ہے، یہ ہمارے قومی منظرنامے میں ہمارے لیے اخوت و بھائی چارے کا ایک سبق یا ایک میسج ثابت ہوگی، یا ہماری مشکلات میں اضافہ کا باعث بنے گی؟ صدیق جٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے مہمان بنے پروگرام میں۔ تو میرا جو تھوڑا سا تعارف تھا اس سے میرا مقصد یا میرا سوال تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو مجھے یہ کہیے گا کہ ایک خاص برادری کے صدر کی حیثیت سے پاکستان کی جو ضرورتیں ہیں اخوت و بھائی چارے کو فروغ دینے کے حوالہ سے، ان کو آپ کیسے پورا کریں گے چودھری صاحب؟ جی شکریہ چینا صاحب۔ چینا صاحب، انٹرنیشنل جٹ کونسل کو فعال اور متحرک کرنے کے سلسلے میں جی انشاءاللہ تعالی آپس میں اپنائیت، پیار محبت کی فضا انشاءاللہ قائم ہوگی۔ جیسا کہ پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایدی فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے، بہت زیادہ بڑا اچھا کام۔ جی وہ آپ کے سامنے آج ایک اتحاد، پاکستان میں اتحاد کی علامت ہے، کوئی شک۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مختلف جو طبقات ہیں، برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کی خدمات بلا تفریق سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرز پہ لاہور میں آپ نے گرکی ہسپتال کا نام سنا ہوگا، ہاں، لاہور بہت میں اچھا واقع ہے، ہاسپٹل۔ ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ جو بھی مریض جاتا ہے وہ کسی خاص ٹبر یا برادری کا نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ اسی طرح گجر برادری، مغل برادری، بٹ برادری، شیخ برادری، کھوکھر برادری، راجپوت برادری سمیت دیگر بہت ساری برادریوں نے ایسے اتفاق کے نتیجے میں بہت سے جو خدمت انسانی کے منصوبے ہیں نا وہ دیے کام ہیں۔ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان میں آپ کے سامنے سر گنگا رام ہسپتال ہے، وہ بھی غیر مسلم نے بنایا تھا، جس سے آج سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل جٹ کونسل جو ہے اسی طریقے پہ کام کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کے لیے بہتر منصوبہ اچھے پروجیکٹ آئیں گے۔ اچھا، مجھے یہ فرمائیے گا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور دلیل کے ساتھ بات کی، مجھے اچھا لگا۔ یہ کہیے گا کہ انٹرنیشنل جٹ کونسل جو ہے، چونکہ جٹ پاکستان کی ایک بڑی برادری ہیں، طاقتور برادری ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں جٹ جو ہیں وہ سینٹ میں ہیں، وہ قومی اسمبلی میں ہیں، وہ مختلف صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہیں۔ تو ایسی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا آپ ہمیں کوئی اچھی خبر دیں گے کہ کیا برادری کے پلیٹ فارم سے آنے والے دنوں میں کوئی میڈیکل کالج، کوئی ہاسپٹل، کوئی سکول، کوئی اور اس طرح کا جو منصوبہ جو عوام الناس کے لیے ویلفیئر فراہم کرے، عوام الناس کی خدمت کا باعث بنے؟ شینا صاحب، ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسے فلاحی منصوبے شروع کریں جو تھوڑے سے غیر روایتی ہوں، ٹھیک ہے، روٹین سے ہٹ کے ہوں۔ اس کی وجہ سے جٹ فیڈریشن کی طاقت ہمارا کسان ہیں جو دیہات میں رہائش پذیر ہیں، ٹھیک ہے،
मसलन के शहर का जो कंसेप्ट है ना, देहातों में मौजूद एक बहुत बड़ी आबादी को हमारी हुकूमती बुनियादी सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में इस तवज्जो से काम नहीं कर सकी जितनी शहरों में उन्होंने जितनी तवज्जो शहरों में दी गई है। ठीक है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सेहत, तलीम, अमन व अमान जैसी सहूलियात फराहम करते हुए देहातों को नज़रअंदाज ना किया जाए, देहातों पे भी उसी तरह फोकस किया जाए जैसे शहरों में फोकस कर रही है हुकूमत। ठीक है। इंटरनेशनल जट काउंसिल ऑफ मुख्तलिफ देहाती इलाकों में मौजूदा ख़ानदानी जो दुश्मनियाँ हैं उनको सुलह के ज़रिए दोस्तियों में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। जी जी। अच्छा, तो इस जो ये ख़ानदानी दुश्मनियों को सुलह में बदलने का जो काम है या नेक काम है, इसमें जो मेंबरान असम्बली हैं आपकी बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले, किसी का नून लीग से तल्लुक़ है, किसी का पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ है, किसी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से तल्लुक़ है, तो ये सारी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी मुआवनत कर रहे हैं आपकी? जी जी, खुशी की बात यह है कि हमारी बरादरी में सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में और सेनेट में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बरादरी के। जी जी बिल्कुल। और जब हम आपस में मिलते हैं तो प्यार मोहब्बत में इस तरह होता है कि जैसे हम एक ख़ानदान हैं। अच्छा। जी जी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सारे जट प्लेटफार्म के फोरम से जब मिलते हैं नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, पीटीआई वाले, तो सब फिर वो अच्छे तरीके से मिलते हैं। अच्छे तरीके से एक ख़ानदान की हैसियत से मिलते हैं। वहाँ पे पीटीआई और नून लीग नहीं होती? कोई पीटीआई, नून लीग, कोई पार्टी का तल्लुक़ नहीं होता। वहाँ पे सारे जट होते हैं, एक बरादरी होते हैं, एक ख़ानदान होते हैं और हम मिलकर जो है ना वो सारे इकट्ठे बैठते हैं और बड़ी खुशी होती है। आपस में मसाइल पे गौर होते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मिल के सारे वो बेहतरीन जो लाए अमल है वो फिर हम उस पर कोई ना कोई डिस्कशन होती है, डिस्कस होती रहती है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये कहिएगा कि चूँकि जितनी भी तंजीमें बनती हैं मुख्तलिफ अदवार में, हमने देखा अब दस्तारीदी साहब को छोड़ के बाकी जो इस तरह की कौंसलें बनती हैं उनके जो मकासद होते हैं कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो सियासी किरदार भी अदा करना चाहती हैं। तो आप की जो ये कौंसल है इंटरनेशनल जट कौंसल, क्या आने वाले दिनों में ये भी इस तरह का कोई इरादा रखती है कि इसको सियासी जमात के तौर पे आने वाले दिनों में हम देखेंगे या किसी ख़ास सियासी जमात की हमायत करेंगे या इसको सिर्फ वेलफेयर की हद तक ही रखेंगे? जी छिना साहब, इसमें हम ये चाह कर भी नहीं कर सकते कि हम किसी ख़ास जमात की हमायत करें। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्लेटफार्म में इंटरनेशनल जट काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, पीटीआई, सारी जमातों के, जमात इस्लामी भी है, जमात इस्लामी अच्छा, उलमा भी है माशाल्लाह। जी जी, सारी जमातों के दोस्त इसमें शामिल हैं। तो इस वक्त हमारी तंजीम में जो सूबाई और कौमी के जितने भी दोस्त हैं ना, तो हम वहाँ पे कोई पार्टीज़म नहीं होता। ठीक है जी, तो हमारा कोई इरादा भी नहीं है। तो यही हमारी पार्टी है इंटरनेशनल जट काउंसिल और सारे हम एक प्लेटफार्म खिदमत इंसानी के हवाले से कुछ काम करेंगे जी। सियासत नहीं होगी इस पे? जी, इसमें सियासत नहीं होगी। अच्छा, खिदमत इंसानियत का अच्छे जो मंसूबे हैं उस पर इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो आपकी तकरीबात होती हैं मुख्तलिफ से कुछ मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह से कुछ जो जट हैं वो गुलकार भी हैं, जिनमें अब्बास जट हैं, आतिफ असलम हैं, रिजवान अकबर हैं और भी कुछ गुलकार हैं। तो क्या अपनी बरादरी के जो गुलकार हैं वहाँ पे फ़न का मुजाहरा भी करते हैं मुख्तलिफ तकरीबात में? आपकी जो जटों की जो तकरीबात होती हैं आपकी बरादरी की? जी जी, पहले भी करते हैं और अब हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह इस वाले से कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है? कोई बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं रमज़ान के बाद, तो उसमें सबकी नुमाइंदगी होगी। तो हमारे ग्रुप में भी शामिल हैं। अच्छा, हर तबका से डॉक्टर हैं, कोई पुलिस में हैं लोग, कोई दीगर महकमों में वकला हैं। तो सब महकमों के साफ़ी हैं, आप जैसे साफ़ी जो हमारे साथ शामिल हैं, तो सारे तबका से लोग शामिल हैं। अच्छा, तो मैं ज़बरदस्त, मैं देख रहा था आपने पग बांधी हुई है, ये वो खूबसूरत एक हमारी रवायत है पंजाब की। तो क्या ये बरादरी की तरफ से फरमाइश आई जब आप सदर बने हैं तो आपने ये पग बांधना शुरू की, या उससे पहले भी ये शुरू से ही आपके घर में भी आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा तो उसी वक्त से ये हिस्सा है आपकी शख्सियत का? जी छिना साहब, ये तो ख़ानदानी पहचान है जट बरादरी की, और पहले भी हमारे बड़े भी जो है वो भी बांधते रहे हैं और हमने उनकी रवायात को बरकरार रखा है। तो अभी
हमारी जिम्मेदारी है और ये पहचान है हमारी जटों की, तो इसलिए ये बाकी बांधना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं पूछूंगा, उसके बाद इजाज़त आपसे लेंगे। आप चूँकि एक बहुत बड़ी बरादरी जो है उसकी जो एक मुनज़्ज़म तंजीम है उसके सदर हैं इन दिनों, तो एक इल्ज़ाम लगता है हमारे सियासतदानों पे, वो ये है कि वो कहते हैं, हमारे जो पिछले 10-20 सालों से वाबस्ता इक़्तिदार लोग हैं उन पे एक इल्ज़ाम लगता है कि जब तक काश्तकार और जो वडेरे थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं उनके पास हुकूमतें रहीं, तो जो कुछ ना कुछ अवामी मसाइल थे उनके हल की तरफ तवज्जो दी जाती थी। यानी देहातों से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं या ज़मींदार लोग हैं, वो इल्ज़ाम लगाने वाले ये कहते हैं कि जब से हुकूमत सरमायादारों के पास आई है, सनतकारों के पास आई है, ताजरों के पास आई है, उस वक्त से पिछले 20-30 सालों से हुकूमत जो है वो भी कारोबारी तर्ज पर हुकूमतें चलने लगी हैं, सियासत होने लगी है। तो इस हवाले से आपने भी गौर किया, फोकस किया, देखा कि क्या ऐसा ही है कि पिछले कुछ अरसा से हुकूमतें जो हैं वो सियासत जो है वो तजारती बुनियादों पे, सनती बुनियादों पे होने लगी है, या एक मुख्तलिफ लोगों का ये नुक्ता नज़र है अपना अपना? जी, इसमें किसान को वाकई जो है ना जी, वो ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनके साथ जो सलूक है ना वो दूसरे तबकात से, जो ताजर बरादरी है उनसे हट के हो रहा है। ठीक है। किसान असल में परेशानी का शिकार ज़्यादातर रहे हैं, लेकिन इस पे इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ उठाएंगे अपने किसान के लिए, उनको ताकतवर करने के लिए अपने किसानों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ बनेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे मेहमान बने। नाजरीन, ये थे चौधरी सदीक जट जो कि इंटरनेशनल जट काउंसिल के मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान के। उनकी गपशप आपने सुनी और हमारी कोशिश ये होती है ऐसे दोस्तों को बुलाने की कि हम कुछ ना कुछ उनसे जो उनका मंशूर है या नुक्ता नज़र है वो जानें और आप तक पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है कि इनके साथ हमारी गपशप आपको अच्छी लगी होगी। हमारा साथ दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।